Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Um, Last time we discussed about the registers, and we told about the registers are nothing but a combination of flip-flops. One flip-flop can store a 1 bit. So if you have to store many bits, so you may need many flip-flops, right? Okay. I may also open up the mics while I'm keeping it off. Everybody is the cam. Okay. Mute. Hello, participants. Say yes. Okay. Now, if you have a many flip-flops together, it will form as a register. Okay, when many flip-flops come together, it's called as a register. We know that, and we see that they are tied together. These flip-flops are tied together to form a register. Okay, and then we say we need to have some kind of load and unload and all that, so that we have discussed that if this is 0 and this becomes 1, so that means these inputs are with this NOT gate. So if this is 1, this is 0, the load is 0, it will not take the inputs. Okay, rather it will get the memory state that back loop. This will work because here this will be 1 to this AND gate, but to these AND gates which are taking inputs, there will be 0. Okay, this is what we explained it. So this is what will happen on 1 and 0. Then we say there's a shift registers, the registers where we transfer data from to and fro. That's called the shift register. Either you can shift it. Shahbaz, open up your camera or leave the class. Shahbaz. Okay, I'm going to remove you. So shift register is where you can pass data either serial in and serial out, or serial in and parallel out, parallel in, serial out, parallel in, parallel out. And universal has all the directions. In the universal, you can have all the directions, right? You can go this way, or in universal you can go all the directions in a one flip-flop. If you have arrangement like that, then it will be called as a universal. Mohsen Shabir, who is this? Okay, let me admit him. So direction, so depending upon whether you have a direction from this way or this way, okay, or you can rotate. That means going from this, coming back to it. Okay, Mohsen Shabir, open up your camera, or I'm going to remove you. Okay. Keep all the time. Be seriously in front of the class. Do you understand, Mohsen Shabir? Okay. I'm watching you. Keep that thing in mind. Right or left. So that means either this can go, left shift this way, and either this can go this way, right shift. So क्या सर जो करा Mohsen Shabir सुबह? So क्या नाचा क्या था? Sit in a class seriously. Why are you standing up and going like that? Or it is bidirectional. Bidirectional means it can go both ways. It can go left way and can go to the right way. There are many students in your class जिनको ना पहले उनको तमीज सिखाना है, जो कि स्कूल में उन्होंने नहीं सीखा अभी तक. आपके क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बेवकूफ बच्चे हैं जिनको पहले सिखाना पड़ेगा कि स्टूडेंट किसको बोलते हैं, वो क्लास में किसे बोलते हैं. उनको इस बात की भी तमीज नहीं है कि क्लास का क्या चीज है, क्लास में कैसे बैठा जाता है, क्योंकि उनकी स्कूलिंग मेरे ख्याल से बहुत पुअर हुई है. क्योंकि स्कूल ऐसा चीज होता है जहाँ ग्रूमिंग होती है बच्चे की. अगर स्कूलिंग ही पुअर हो गई तो वो बेचारा जो है वो छोटा ही रह जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल छोटा ही रह जाता है ना, उसका दिमाग बढ़ता नहीं है. क्योंकि स्कूल में से जब 10th से बाहर आप आते हो, आपका एक ग्रूमिंग लेवल होती है, आपको एक एटीट्यूड होता है आपका कि जिसमें एटिकेट्स आपके आ जाते हैं. अगर स्कूलिंग ही बेचारे की पुअर हो गई तो उस बेचारे को पता ही नहीं, तमीज ही नहीं होती है कि क्लास किसे बोलते हैं, टीचर किसे बोलते हैं, बात कैसे करनी चाहिए, उसको बात करने की भी तमीज नहीं होती है. तो ऐसे बच्चों को पटक के बाहर फेंकना चाहिए, तब जाके उनको समझ आती है. क्योंकि उनके साथ तमीज से बात करेंगे उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनका वो चीज ही नहीं है. तो जब उनको बाहर फेंकते हैं ना, तब जब उनको समझ आती है. लेकिन ऐसे बच्चों को मुझे संभालना आता है, ऐसे बच्चों को संभालना मुझे आता है. ठीक है ना. सो यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स. कॉलेज लेवल में एक बहुत बड़ी लेवल होती है, मतलब आप हाथ हंस कर बच्चे से बात करें, क्योंकि उसकी एक
अपनी रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। तो बच्चे पे वहां रोब करूँ की है, जैसे मेरा छोटा बच्चा है उसको मैं थप्पड़ भी मारूंगा, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं तुमसे जो हाथ हंस बात करें। सो वो लेवल आपके अंदर होनी चाहिए ताकि मैं आपके साथ बड़े रिस्पेक्ट के साथ बात करूं। सो वो लेवल छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या नॉन रेगुलर स्टूडेंट हो। वो लेवल की जिसके ऊपर के टीचर आपके साथ बदतमीजी से बात करें, उस लेवल पे नहीं आना चाहिए, अपने आपको इतना गिराना नहीं चाहिए। So you have to maintain the sanctity of a class. You understand? Now, what I'm saying is the left shift or right shift. If it's a shift register, the data can move to the right or to the left, or it can rotate. Rotate means what? कि अगर ये यहाँ से गया data, for example, यहाँ से जो bit बाहर निकलेगी वो बाहर नहीं बल्कि वापस आएगी first position पे. So that is called the rotate. Now rotate can be left or right. This can go from here to here, or it can come from here to here. So left or right. So rotate left or rotate right, and so on. So we have already discussed it last time. So this is what it is all about. The data in, if it goes, that is serial in, serial out, and serial in, parallel out, and all those things. And now this is the serial in, serial out. That means data is coming in serially, one by one bit at a time, and leaving one bit at a time. And it is leaving, okay? So if it is coming, data is 1010, first 0 will go into here, then 1 will come into here, 0 will go here, and 1 will come here, then 0 will go here, this 1 will go here, okay? And now next 0 will come here, so this will be 0 1 0. Now in the next clock pulse, this 0 will go here, and this 1 will go here, this 0 will come here, and this 1 will come here. So we have 1 0 1 0. In the next clock pulse, 0 will move out. So now we have situation 1 like this, 1 0 1. Now this is empty, and so on. So it will move like that. So how we do that? We have the D flip-flops tied together. And as you could see in the pre-class video, I have shown you that this triangle means what? Who will tell me what is this triangle meaning? What is the meaning of this triangle? Let me see who has seen the video. Edge triggered flip-flop. Edge triggered flip-flop. Very good. Anyone tell me what is the edge triggered flip-flop? Sir, जिसमें edge पे वो काम करता है. Yes. जो अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो किस पे करते थे हम? Level पे. Level पे. इसमें हमारे पास प्रॉब्लम होती थी कि it has a lot of time. जो propagation delay of gate है उससे बहुत ज्यादा है. So that is why we say either we use the positive edge trigger or negative. Is it positive edge trigger or negative edge trigger? What is it? This Positive. This is positive. If it is negative, then there will be a bubble here, right? So that means this is edge triggering. Okay. Now, as you could see here, this is a flip-flop. This is serial data in. We know this is D flip-flop. Say for example, there is a 1 here coming up. Okay. Say there is 1 coming up here in a D. And we know what will be the output of Q0 if it is 1. 1. So 1, definitely it will be 1 because D, when the top is 1, it is set. So that means Q0 will be 1 and Q complement will be 0. So we don't have here Q complement, we have only this one, and it is going to this thing. So all the clock flip-flops are tied together with the clock. Okay, are you seeing? So that means when the clock pulse come, how many of these flip-flops will be active? All of them will be active. Why? Because everybody has a clock. Everybody's clock is 1. Okay, so all of them will be active, all of them work together. But if we have a data like here 1 0 1 1, for example, now this 1 is entering here in a first clock pulse. This 1 enters here and output is 1. लेकिन यहाँ पे पहले सबको 0 था, तो यहाँ पे किसी को बाकी को इनपुट है ही नहीं. जब इनपुट है ही नहीं तो ये वाले कुछ आउटपुट देंगे नहीं. अब ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है. अब दूसरे क्लॉक पल्स में ये वाला 1 इसको घुसेगा और ये अपना 1 इसको देगा. सो नाउ वी विल हैव आउटपुट, ये 1 यहाँ पे आया और ये 1 इस फ्लिप फ्लॉप को आया 1 1. सो वी विल हैव अ 1 1 0 0 आउटपुट, ठीक है ना.
the next clock pulse में 0 घुसेगा अंदर. So we have a scenario like this. So we have now the scenario like this. So we have a scenario like this. Now this 1 has reached here क्योंकि 1 यहाँ पे आया और यहाँ से 1 आया यहाँ पे आया. अब next clock pulse में ये 0 इसको enter हो जाएगा. तो जो ही ये clock pulse में 0 आएगा सबको clock pulse मिल रहा है. ये 1 इसको मिलेगा, ये 1 इसको मिलेगा. यानी कि जब ये 1 इसको मिलेगा ये आउटपुट ये 1 देगा यहाँ पे. ये 1 इस फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा तो ये आउटपुट देगा 1 यहाँ पे. ये 0 इसको आएगा और ये 0 यहाँ पे आउटपुट देगा. So we will have a 0 1 1 as output of these. इस बंदे को अभी कुछ नहीं हो. हाँ ये क्लॉक पल्स है लेकिन इसको इसको आउटपुट आ गया ना, इसको यहाँ पे जो इसको इनपुट आएगा वो अब आ गया. अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये 1 यहाँ पे आएगा. ठीक है ना. सो ये सारे काम करेंगे. ये 1 इस फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा तो 1 आउटपुट यहाँ पे आएगा. ये 1 इस फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा तो 1 आउटपुट यहाँ आएगा. ये 0 इस फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा तो 0 आउटपुट यहाँ पे आएगा. और ये 1 इस फ्लिप फ्लॉप आएगा तो 1 यहाँ पे आएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज शिफ्टिंग. The bits are shifting. 1 0 1 और 1 बाहर गया. Now next clock pulse. अब इनपुट में कुछ नहीं दे रहा हूं. I'm not giving any input. So यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं है. So that means it will get nothing. But लेकिन ये 1 इसको मिलेगा, ये 0 इसको मिलेगा, ये 1 बाहर जाएगा. And so on. It travels. Does it make sense? ये समझ आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? But only regular students. Irregular student को तो समझ आएगा नहीं, वो तो पता ही है. इसी तरीके से अगर हमारे पास है सीरियल इन पैरेलल आउट. पैरेलल आउट में क्या करेंगे हम? जहां से ये था हमारे पास, जैसे ये सीरियल इन था, पैरेलल आउट में हम आउटपुट पैरेलल निकालेंगे. जो आउटपुट हम इसको दे रहे थे वो बाहर भी निकालेंगे. सो सीरियल डेटा इन आ रहा है लेकिन आउटपुट कहां से निकल रहा है? यहां से पैरेलल. ठीक है, इनमें से निकल रहा है. डज इट मेक सेंस? सो दैट इज कॉल्ड एज सीरियल इन पैरेलल आउट. यानी कि आपको इसमें जो वायर्स हैं वो पैरेलल निकालने के लिए ये जो Q0 है इसको बाहर निकालना है. इसमें पैरेलल का सवाल ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे जो इसका आउटपुट है यहाँ पे वो जा रहा था इसको. इसका जो आउटपुट है वो जा रहा था इसको. इसका जो आउटपुट है वो जा रहा था इसको. और आउटपुट खाली यहाँ निकल रहा था. इधर किधर कहीं पर भी आउटपुट नहीं है. तो यहाँ सीरियल इन डेटा आ रहा था और सीरियल आउट यहाँ से निकल रहा था. सो सिर्फ शिफ्ट हो रहे थे इसके अंदर, रजिस्टर्स के अंदर, इस इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर. लेकिन पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में हम तार लेंगे यहां से भी ताकि हमें आउटपुट भी मिलता जाए पैरेलली. ठीक है. एंड बाय द वे जो क्लॉक है इन सबको क्लॉक है. सो जब आप एक ही क्लॉक सब फ्लिप फ्लॉप्स को देते हो इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस सर्किट. इट इज कॉल्ड व्हाट? सिंक्रोनस सर्किट. कीप दैट थिंग इन माइंड. इट्स कॉल्ड सिंक्रोनस सर्किट. ठीक है ना. ओके. नाउ सीरियल इन पैरेलल आउट में क्या होगा? जो आउटपुट आपका आता है वो आप साथ में लेते हो बाहर. एक तार आप लगाते हो इनको ताकि आपको आउटपुट भी मिलता जाए. यानी कि सीरियल इन तो यहीं से आ रहा है ना, क्योंकि इनपुट अगर हम इनपुट भी ऐसे देते हैं इनको, अगर इनपुट भी हम पैरेलल ही देते तो ये पैरेलल इन बन जाता. लेकिन मैं इनपुट ऐसे नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, मैं इनपुट सीरियली दे रहा हूँ एक एक करके यहाँ से, क्योंकि सिर्फ इनपुट का सिर्फ ये है, ये पाइप है जहां से इनपुट जा रहा है. लेकिन आउटपुट कहां से जा रहा है? यहाँ से भी, सॉरी ये नहीं है, यहाँ से ये और ये आउटपुट पैरेलल जा रहा है. सो दिस इज सीरियल इन पैरेलल आउट. आप मुझे बता सकते हो पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होगा? पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होगा? यहाँ पे व्हाट विल हैपन इन पैरेलल इन पैरेलल आउट? हर किसी को इंडिविजुअल इनपुट्स होंगे. वेरी गुड. लाइक दिस. यानी कि ये तारें होंगी सबको, है ना. सो दैट विल बी पैरेलल इन पैरेलल आउट. लाइक या पैरेलल इन सीरियल आउट पहले हमारा है कि आ रहा है पैरेलली लेकिन निकल रहा है सीरियली. यानी कि इनपुट जो है D0 आप देखो यहाँ पे, D1 देखो आप यहाँ पे, D2 यहाँ पे और D3, इनपुट सबको आ रहा है. ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा सर्किट क्या कर रहा है वो बताऊंगा मैं. लेकिन पहले इनपुट क्या आ रहा है? सबको पैरेलली आ रहा है. लेकिन आउटपुट कहां से निकल रहा है? इधर से. आउटपुट सीरियल निकल रहा है, बाहर नहीं जा रहा आउटपुट. ये क्लॉक है, सिर्फ ये क्लॉक वाला है और आउटपुट हर एक का बाहर नहीं आ रहा है. यानी कि इसका जो ये आउटपुट है वो इसमें घुस रहा है. इसका जो आउटपुट है यहां से आके इधर घुस रहा है. इसका जो आउटपुट है यहां से आके इसमें घुस रहा है, बाहर नहीं जा रहा. यानी कि आउटपुट इज सीरियल. आउटपुट यहां से निकल रहा है, इस पाइप से निकल रहा है बाहर. दैट इज आउटपुट इज सीरियल. लेकिन इनपुट इज पैरेलल. उसमें क्या है कि आपने एक नॉट गेट लगा दिया यहाँ पे. ठीक है,
अब जब आपने नॉट गेट लगा दिया, मोहसिन शबीर क्या सिर्फ 4 बार हो गया एग्जिट यहां से। सो नॉट गेट जब आपने लगा दिया, जब आपका लोड फॉर एग्जांपल 0 है, ठीक है, when load is 0 what will be output of this not gate? 1, है ना, output of this not gate will be 1. So that means ये मैं दे रहा हूं ना इसको, इस AND गेट को, so that means G1 gate will have D1 आपका इनपुट आ ही रहा है और ये यहां से 1 है, यानी कि this will be active. और जब ये 0 है तो ये 0 है, तो उस वक्त G4 जो गेट है ये इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसको 0 मिलेगा। जब इसको 0 मिलेगा क्या ये एक्टिव होगा? नहीं, दिस विल बी इनएक्टिव। सो G4 विल बी एक्टिव, G1 विल बी एक्टिव। G1 एक्टिव जब होगा तो D1, उसका मतलब है कि D1 जो आपका है वो इसको आएगा, यानी कि इनपुट ये लेगा और आउटपुट अभी नहीं देगा, क्योंकि आपका 0 है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि आपका यहाँ पे 0 है, यानी कि ये वाली लाइन 1 है, ये वाली लाइन 1 है, और वो आपके इस गेट को मिलती है, वो आपके यहाँ पे इस गेट को मिल रही है, और ये 1 इस गेट को मिल रहा है। तो जिसको 1 मिल रहा है दैट गेट विल बी एक्टिव। एंड जो G3 और G2 और G1 है वो किसके साथ टाई अप है? D1, D2 एंड D3 के साथ। दैट मींस दीज एंड गेट्स विल बी एक्टिव बिकॉज इनका अब जो भी D3 होगा, अगर D3 0 होगा तो ये आउटपुट 0 देगा, अगर D2 1 होगा या 0 होगा, जो भी होगा वो G2 देगा बाहर, और यहाँ G1 देगा D1 बाहर, ठीक है ना, क्योंकि आपका इसको 1 मिल गया, जो दूसरा इनपुट एंड गेट को है वो 1 मिल गया। अब एंड गेट में जब एक इनपुट 1 होता है, इसका आउटपुट वही होगा जो दूसरा इनपुट होगा, यानी कि D1, D2, D3 जो भी होगा वो आउटपुट आएगा। इस सूरत में G4, G5 एंड G6 क्या करेगा बताइए? इस सूरत में G4, G5 एंड G6 को क्या मिल रहा है यहाँ से? 0 मिल रहा है। So that means they will be inactive. Inactive. जब इनएक्टिव हो गए that means it is taking only D1 as input, और वो और करके यहाँ से आए, that is taking input, it is taking input, it is taking input, whatever the D3 is, whatever D2 is, whatever D1 is, and D0 तो जा ही रहा है बहरहाल। लेकिन जो आउटपुट है उनका गेट इस वक्त नॉन एक्टिव है। तो अब जब मैं क्या करूंगा काम, मैं इस गेट को 1 बनाऊंगा यहाँ पे, जब मैं क्या करूंगा काम, जब मेरा ये वाला यहाँ पे लोड 1 होगा, so what will be the output of this NOT gate? 0. 0. So this 0 is fed to the G1, so this will be inactive. This 0 is given from here to the G2, this will be inactive. This 0 is given to the G3, this will be inactive. That means it will not take this D1, D2 and D3 as my inputs, okay? Rather 1 will go from here, okay? 1 will go from here to G4, G4 will be active, G3 will be active, G6 will be active. That means when this is active, this output will go into this output will go into this output will go into this. And it is edge triggered flip-flop, means it will work on this clock pulse, okay, in a edge triggered, positive edge triggered, यानी कि इस edge के rise पे वो काम करेगा। उसके बाद यानी कि ये एक बार ये काम करेगा, इसने आउटपुट लिए, अब उसके बाद ये डिसेबल होगा, ठीक है, ठीक है ना? डज इट मेक सेंस कैसे ये करेगा काम? यानी कि जब लोड आपका 0 होगा उस वक्त ये इनपुट लेगा, जब लोड आपका 1 होगा उस वक्त ये आउटपुट सीरियली आउट करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनपुट जो हो रहा है पैरेलल आ रहा है, यानी कि एवरीबॉडी इज गिविंग इनपुट। जब क्लॉक पल्स आया राइजिंग एज पे, ये 0 था तो यहाँ पे 1 बन गया। उस सूरत में D1, D2 एंड D3 तीनों एक साथ इनपुट देंगे इन गेट्स को, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। सो पैरेलल इनपुट हो रहा है ना? लेकिन जब फिर उसके बाद क्लॉक पल्स आएगा, लेकिन हमें रखना पड़ेगा ये क्या, हमें रखना पड़ेगा ये लोड 1। अब लोड 1 पे ये वाला बंदा इसको देगा आउटपुट, ठीक है ना, और ये वाला बंदा इसको आउटपुट देगा, ये वाला बंदा इसको आउटपुट देगा, फिर यहां से निकलेगा आउटपुट, यहां से निकलेगा। आउटपुट की कोई गुंजाइश नहीं है बाहर जाने की, यहां से कि पैरेलल आउटपुट की गुंजाइश नहीं है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज पैरेलल इन सीरियल आउट, और दिस इज सीरियल इन पैरेलल आउट। व्हाट इज इट? माइक खुला? Parallel in serial out. पैरेलल इन सीरियल आउट। अगर पैरेलल आउट होता तो क्या होता? यहां से भी बाहर का भी इसको ये होता, इंतजाम होता, यानी कि पैरेलली बाहर भी जाता। सिंपल है ना?
सो दैट इज योर पैरेलल इन पैरेलल आउट। डेटा भी पैरेलल आ रहा है और बाहर भी पैरेलल जा रहा है। वेरी सिंपल इजंट इट? यानी कि देखिए ये D0 आ गया, ये D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया पैरेलल, और आउटपुट भी पैरेलल जा रहा है। देखिए पैरेलल जा रहा है बाहर, गोइंग आउट एंड गोइंग आउट। सो वी आर गेटिंग पैरेलल इन पैरेलल आउट। इसके बाद क्या बचता है? बाई डायरेक्शनल, यानी कि इसको यहां से शिफ्ट करना है या यहां से शिफ्ट करना है। उसका मतलब है कनेक्शन कहां से ले रहे हो। इसमें ये बिल्कुल वही है जो अभी हमने किया एक्सप्लेन। इसमें सिर्फ आपको जो यहाँ वाली डायरेक्शन है, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ यहां से भी आए। अभी तो हम लेफ्ट टू राइट कर रहे थे ना, इसमें जो अभी यहाँ पे ये कर रहे थे, ये वाला जो हम कर रहे थे लेफ्ट टू राइट कर रहे थे, है ना। यहाँ से जा रहा था लेफ्ट टू राइट, फिर ये गया यहाँ से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट करना है, इसी सर्किट को हमें एक्स्ट्रा तार एक लगानी है, ये वाली, ताकि ये वाला बंदा, क्योंकि जब यहां से यहां जा रहा था, ठीक है ना, इसका आउटपुट जा रहा था इसके इनपुट में, है ना। इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में जा रहा था, ठीक है ना। यहां पे आप देखें, जो इसका आउटपुट है, दिस इज आउटपुट ऑफ दिस डी फ्लॉप, दिस इज गोइंग टू द इनपुट ऑफ दिस डी फ्लॉप, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। लेकिन अगर मैं यही चीज करना चाहता हूं राइट टू लेफ्ट, दैट मींस इसका आउटपुट हमें घुसाना है, इसका आउटपुट हमें घुसाना है किसके? इसके इनपुट में, है ना। क्योंकि हमें जैसे यहां पे था, इसका आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में घुसाना है, तो वही ख्याल यहां भी रखना है। यानी कि इसका आउटपुट यहां से है और इसका इनपुट यहां से है। दैट मींस हमें एक्स्ट्रा तार लगानी है, इसका आउटपुट घुसना चाहिए इसके इनपुट में, फिर इसका आउटपुट घुसना चाहिए इसके इनपुट में, इसका आउटपुट घुसना चाहिए इसके इनपुट में, तो हो जाएगा ना डेटा ट्रांसफर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सो आप इसको ध्यान से घर में आराम से करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही ये वाली तार एक्स्ट्रा है कि हमने इसका आउटपुट घुसाया है यहां से इसके इनपुट में, और इसका आउटपुट यहां से घुसाया है वापस इनपुट में, और फिर हम ऐसे ही कर रहे हैं। यानी कि इसका आउटपुट इसके इनपुट में, अब इसका आउटपुट इसके इनपुट में, सॉरी इसके इनपुट में यहां से, एंड सो ऑन। So that means it can work from right to left. Rest is same. Okay? आप इसको ध्यान से घर में करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। Now we have counters. Okay? Now counter it's again a sequential circuit, because why is a sequential circuit? Because it will have what? When I say it's a sequential circuit, it means it has Feedback loop. feedback loop. It is again made up of flip-flops. You can make them using D flip-flops or T flip-flops or JK flip-flops, whatever you like. Then accordingly you have to adjust circuit, and then the counter will count you, like it starts from 0, 1, 2, 3 and goes back to the 0, and it's called the mod of the counter. The counter is called the mod of counter, means ये कितना count करेगा। अगर ये 6 बारी count करेगा तो फिर ये वापस आएगा, ठीक है ना। अगर ये 7 बारी काउंट करेगा या 8 बारी काउंट करेगा या 10 बारी काउंट करेगा, 10 के बाद ये 0 आना चाहिए। That is called as mod of the counter or a modulus of a counter. So modulus of the counter means how many times it can count, simple as it is. So a counter is actually basically two types, either it's asynchronous or synchronous. So you have an example of a binary counter. Now even though you have a binary counter, that binary counter will be asynchronous or synchronous. So what is synchronous and asynchronous meaning? The synchronous and asynchronous means like this. See, we have a flip-flop. This is the JK flip-flop, okay? And it is its output. Say this is Q. And this is the next flip-flop. Okay, it is J and K, and it is Q. And if I had to say it is the negative edge trigger, then I had to show what? Like this. And why I'm showing it like this, because we work now like अगर हमारे पास है 4 और 5 है 1 0 1, so जो हमारा LSB होता है वो यहाँ से होता है ना। So we start the flip flop from right to left, क्योंकि हमारा जनरेट होता है कि 1 यहाँ पे, फिर 0 फिर 1, यानी कि जो हमारा बाइनरी होता है वो ऐसे होता है ना 1 0 1। LSB यहाँ से होती है ना, ये LSB है और ये MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि ये 1 है, ये 2 वाली है, ये 4 वाला है। तो जितना आप लेफ्ट जाएंगे उतना बंदा बड़ा हो जाएगा ना, 2 रेज्ड पावर हो जाएगा। उसके बाद 4 के बाद क्या होगा 8 16 एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ से MSB है।
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यहाँ से LSB है, इसलिए मैं यहाँ से राइट टू लेफ्ट काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखें इसमें, हिफ्जान यू शुड पुट ऑन योर कैमरा। अब आप देखें इसमें कि मैं कहता हूं कि जो मेरे काउंटर्स हैं, देयर आर टू टाइप्स, अदर दे आर एसिंक्रोनस और दे आर सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में क्या होगा कि क्लॉक जो आपका है वो आप सिर्फ पहले वाले बंदे को देते हो, सेल के क्लॉक, बाकियों को, यानी अगर मेरे पास और भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए हमारे पास ये JK, दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड and this is my Q complement. My clock is only to the first flip flop, okay, not to the others. Then this will be called as asynchronous. But the question is, how will they work? They will work, I will feed the output of this as a clock to this. I will feed output of this as a clock to this. So that means if this output is 0, that means when this in the clock pulse, when the clock pulse comes to this 0 will go into this clock, that means this will be deactive, not active, okay. And if फर्ज कीजिए यहाँ पे 1 था और clock pulse आया और ये 1 इसको जब मिलेगा, that means this will be active. So they will be active only when it is previous flip flops Q will be 1. If previous flip flops Q is 0, they will not be active, and this guy will be active all the time. Why? Because clock इसके साथ डायरेक्ट है, इसको हर बारी हर क्लॉक पल्स के साथ इसको मिल रहा है, हर बारी पहले वाले को LSB को, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले को है, and I am putting out input to this as a 1. For example, I'm giving 1 case to all of them, because counters we use T flip flop. In T flip flop, what we do, we use only that 1 state, that is my toggle case, and we know 1 state it toggles, right? 1 स्टेट में क्या होता है, टॉगल दिखा ना JK फ्लिप फ्लॉप। अब लेकिन JK फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम थी टॉगलिंग में, शाबाश, जो JK फ्लिप फ्लॉप था वो बहुत बार होता था, अनकंट्रोल होता था, लेकिन उसके लिए मैंने क्या बनाया, मास्टर स्लेव। तो क्या उसका मतलब ये है मास्टर स्लेव है ये वाला? हाँ यस सर, नो सर, बिकॉज आई एम यूजिंग एज Edge ट्रिगर। मैंने triggered आपसे flip कहा या तो आप मास्टर स्लेव बनाओ, क्योंकि मास्टर स्लेव में डबल सर्किट्स होते हैं ना, वो लंबा चौड़ा होता है, वो हम नहीं करते इस्तेमाल, हम एज ट्रिगरिंग करते हैं। एज ट्रिगरिंग से क्या होता है, क्योंकि वो राइजिंग एज पे या जो मेरा राइजिंग एज है उस पे काम करेगा या इस पे लेवल पे नहीं काम करेगा, तो उसका मतलब है एक क्लॉक प्लस में एक ही बार टॉगल होगा। तो अब हमें याद रखना ये है कि ये जो ये वाला JK फ्लिप फ्लॉप है ये एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप है, और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है क्योंकि यहाँ पे बबल है, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक ही बार टॉगल होगा। कितने बार टॉगल होगा? एक ही बार। और हम हर एक फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे एज अ नेगेटिव फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म में देते हैं क्लियर। सो क्लियर स्टार्ट में क्या करता है, वो सबको 0 बनाता है। दैट मीन्स आई हैव 0 everywhere in the beginning. That means I have 0 here. जो भी इसका आउटपुट है हर एक का वो 0 होगा in the beginning. Now when the clock comes, वो किसको क्लॉक मिल रहा है बताओ जरा? जो क्लॉक आ रहा है वो किसको मिल रहा है? सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को। So this is FF0, flip flop 0. This is flip flop 1. This is flip flop 2. अब मुझे बताएं, यहां तो फिलहाल सब 0 है। जब क्लियर हमने किया, क्लियर को हमने हाई किया, वो नेगेटिव इसको उसको बनाएगा। दैट मींस इट विल क्लियर द क्यू कॉम्प्लीमेंट, इंटरनली कनेक्ट होगा इनके साथ कॉम्प्लीमेंट शक्ल में और इसको देगा 0 सबको। क्लियर इज हाई, ये कॉम्प्लीमेंट शक्ल में अंदर से तार जुड़ी होगी इस क्यू के साथ, ठीक है ना। तो जब यूं ही मैंने इसको 1 बनाया तो नाउ दिस 0 विल बिकम व्हाट, it will become this will become 0 and ये सारे 0 बन जाएंगे। तो clear simply क्या करेगा, it will clear all the flip flops to the 0 0 0 0 0। अब जब पहला क्लॉक पल्स आया, वो क्लॉक पल्स किसको मिलता है? पहले वाले फ्लिप फ्लॉप, है ना, स्टॉक। it will get to the first flip flop. Hifzan, your camera is off. Why are you then here? If you are not interested in the class, then you should remove yourself, na? Your camera is off, Hifzan.
45 रोल नंबर. लेट मी रिमूव दिस गाय. फजूल में बैठते हैं क्लास के अंदर. उसी ब्याह गराशु युवांसु गराशु सुनियरांसु, क्या नाम था इसका. नाउ लुक हियर, इनके इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने के अंदर, ये सिर्फ मतलब काइंड ऑफ, एनीवेज लीव देम, वी शुडंट टॉक अबाउट दीज गाइस. सो जब क्लॉक पल्स पहला आएगा, ठीक है, होगा क्या, ये क्योंकि इसको 1-1 हमेशा ही मिल रहा है, जे एंड के बोथ आर टाइड टू द 1, ये हमेशा मिल रहा है इसको. सो दैट मींस इट विल ऑल द टाइम टॉगल. सो ये टॉगल करेगा. जब ये टॉगल करेगा यहाँ पे क्या आएगा, दैट मींस इट वाज रीसेट ना, जब 0 था यहाँ पे, इट विल बिकम व्हाट, 1. सेट. 1. इट बिकम सेट, दैट्स 1 0, और नीचे वाला मैं ले नहीं रहा हूं, सो इट बिकम्स 1. लेकिन खुद का क्या था ये 0, वो 0 इसको मिलेगा, क्या ये काम करेगा फ्लिप फ्लॉप 1, नो, ये 0 ही रहेगा. क्या ये वाला काम करेगा, नो, ये 0 ही रहेगा. ठीक है ना. सो वी विल हैव आउटपुट 1 0 0 1, सो वी विल हैव आउटपुट 0 0 1. ठीक है. अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ गया. जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ गया, ये क्या ये टॉगल होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसके पास 1-1 हमेशा ही है और क्लॉक भी इसके साथ है. सो दैट मींस ओनली थिंग इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, यानी कि ये डाउन, जब ये जो वाला है डाउन, क्लॉक का जो डाउन वाला है एरिया है, उस पे काम करेगा. ठीक है ना. सो नेगेटिव एज पे काम करेगा. सो ये तो क्लॉक, ये तो टॉगल होगा ही होगा. अब जब ये टॉगल होगा, ये क्या बनेगा, क्योंकि आप 0 नहीं, यहाँ पे क्या है 1, तो ये 0 बनेगा. लेकिन इससे पहले ये 0 बनेगा, ये 1 मिलेगा ना इसको. Yes sir. इट इज गेटिंग एज ए क्लॉक टू इट. सो इसको क्या होगा बताएं इसमें, Toggle होगा सर. लेकिन इसको तो जे के कुछ भी नहीं है. टॉगल तब होगा जब इसको 1-1 स्टेट होगी, है ना. ये टॉगल तब होगा जब इसको 1-1 स्टेट मिलेगी, राइट, है ना. समझ आ रही है. तो यानी कि इसका मतलब है कि जो 1-1 स्टेट है मुझे देनी पड़ेगी सबको, इसको भी और यहां से इसको भी, ताकि हमेशा टॉगल हो. तभी तो मैं कहूँ ना टी फ्लिप फ्लॉप है, जब इनको ये टॉगल मिलेगा. ठीक है. अब मैंने क्या काम किया, अब ये 1 जो इसको मिलेगा इस फ्लिप फ्लॉप को, तो ये टॉगल होगा. क्या ये वाला टॉगल होगा, ये वाला लास्ट वाला नहीं, क्योंकि इसको 0 मिल रहा है ना. सो ये टॉगल अब होगा, यहाँ पे 1 बनेगा, लेकिन ये वाला टॉगल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो 0 था आउटपुट, वो इसको मिला था इस क्लॉक पल्स के दौरान. ठीक है ना. सो दैट मीन्स, 1 सेकेंड, लेट मी टेक दिस कॉल. हाँ समझ, ओके, आई एम इन क्लास, वेट just a minute. So do you understand what I'm saying? Now that means the output will be 0 1 0, क्योंकि ये 0 बन गया और ये 1 बन गया, और इसको 0 मिला था, तो इससे काम नहीं करेगा. जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा, ये अगेन टॉगल होगा. Now this will not be 0, okay, because the thing was like this. Let me rub it. Okay, ये वाले मिल रहे हैं इसको भी. इट्स एक्चुअली लाइक साइड, उसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. ओके, दिस इज माय फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज गेटिंग टू द जे एंड के. ओके, और इसको क्लॉक मिल रहा है. दिस इज, सॉरी अगेन, ये यहाँ पे इसको यहाँ मिला, ये क्लॉक मिल गया इसको. अब हमारे पास इस वक्त था 0, इसको 1 और इसको 0. जब इसको क्लॉक मिला, ये टॉगल तो होगा ही होगा, क्योंकि इसको क्लॉक मिल रहा है, लेकिन खुद ये 0 इसको देगा, यानी कि ये टॉगल नहीं होगा. तो ये टॉगल होगा. क्या ये टॉगल होगा, सेकंड फ्लिप फ्लॉप टॉगल होगा, नहीं, क्योंकि इसको 0 मिला ना क्लॉक, ये टॉगल नहीं होगा. क्या ये टॉगल होगा, Yes sir. हाँ, इसको 1 मिला ना क्लॉक. तो जब क्लॉक 1 मिलेगा इसको, ये टॉगल हो जाएगा. So what will have output? थोड़ा सा गड़बड़ किया यहाँ पे, अभी आना चाहिए 0. अगर 0 1 0 मेरे पास था, हाँ, क्योंकि जब इसको क्लॉक ही नहीं मिला, जब इस बंदे को क्लॉक मिला ही नहीं, तो ये 1 कहाँ आगे जाएगा. ठीक है, इसको 1 तो आउटपुट है, लेकिन जब ये एक्टिव होगा तब जाके 1 जाएगा ना आगे. जब ये डीएक्टिव है, तो इसको 0 मिल रहा है, तो ये तो जाएगा ही नहीं आगे. तो यानी कि ये काम नहीं करेगा फिर भी, हालांकि यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये खुद डीएक्टिव है, क्योंकि इसको 0 मिला, तो ये आगे नहीं जाएगा. सो ये वाला आउटपुट होगा, तो आउटपुट आएगा 0 1 1.
उसके बाद जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा, ये टॉगल होगा, ये क्या बनेगा यहाँ पे 0, लेकिन ये 1 इसको देगा। जब इसने 1 इसको दे दिया, ये एक्टिव होके अपने आप को टॉगल करेगा, 0 बनाएगा, लेकिन ये 1 इसको मिलके ये टॉगल होगा। अब ये 1 0 0 बनेगा। सो वी विल हैव अ नेक्स्ट नंबर दैट इज 1 0 0 and it will work so on. It will go on working, right? Let me take, we have 1 minute left. Let me take one screenshot and we'll continue with this next time. We'll continue with this paint because we have only one minute left.